चाइनीज़ का मज़हब, दीन, रब, खुदा सब पैसा है। कोई रिलीजन नहीं है इनका, कोई मज़हब नहीं है। ये सिर्फ जो है ना वो काम करते हैं पैसे के लिए, लेकिन करते हैं ऑनेस्टी के साथ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਆਏਗਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਡਾਲਰ ਬਹੁਤੇ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਨਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਜਾਜ, ਨਾ ਕੋਈ प्रोटोकॉल, ना कोई रूट, कुछ भी नहीं। तो एक पार्टी है उन्हीं को गवर्नमेंट करनी है। ऐसी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर भेजो जिससे पाकिस्तान में होम फैक्ट्रीज लगें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜਨਾਬ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਅਗੇਨ ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਛਾ ਅਰਸਲਾਨ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਬੁੱਧਮਤ ਨੇ, ਕੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਚਾइनीज़ ਦਾ मज़हब, दीन, रब, खुदा सब पैसा है। कोई रिलीजन नहीं है इनका, कोई मज़हब नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ जो है ना वो काम करते हैं पैसे के लिए, लेकिन करते हैं ऑनेस्टी के साथ। यार आप देखिए, मसलन आपको तुसी मरना कोई नहीं, मतलब मरना है तुसी, पर मरण तो बाद ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਦੇ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ, ਤੇ ਨਾ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਡਰ, ਤੇ ਨਾ ਜੰਨਤ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਬਈ? देखें वो जो उन्होंने ਜਿਹੜਾ ईमानदारी अपनाई है ना, वो इस दुनिया वास्ते अपनाई है। उन्होंने अगली तो उन्होंने है ही कोई नहीं उन्होंने मुताबिक। ठीक है, तो उन्होंने कोई सवाल जवाब का डर नहीं है, लेकिन उन्होंने यह पता है कि ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਆਏਗਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਡਾਲਰ ਬਹੁਤੇ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਮਤਲਬ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੂਮਨ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮਾਲ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਾਲ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠ ਅਸਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੇਬਰਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਜੰਨਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੋਜ਼ਖ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੂਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਹਿਫਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤੋਜੀਹਾਤ ਜਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਜਾਂ ਜੰਨਤ ਜਾਂ ਹੂਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਨਕਸ਼ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਜੀ ਹੂਰਾਂ ਕਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੰਨਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੂਮਨ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਇੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, लेकिन वो झूठ बोल दे कोई नहीं। देखें, इसमें मसला ये है कि अगर हम लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, तो हम सफ़र भी कर रहे हैं। हमारी जो इस वक्त हम लोग असी जड़ा इस वेले रसवा हो रहे हैं, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਈਏ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਖਰਤ ਵੀ ਜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਨਸੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਤਾਂ ਅਰਸਲਾਨ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਤਲਬ ਮੌਲਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਵਰ ਨੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਚਾਈਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ लेकिन वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स और ये जो तबलीग है ये वहाँ पे है ही नहीं। ठीक है ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। नहीं कर सकते। ਅੱਛਾ ਸਟਰੀਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚਲੋ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਟਰੀਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਇhtਜਾਜ, ਨਾ ਕੋਈ ਇhtਜਾਜ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਟ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸਲਾ। ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰਵੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਹੋਵੇ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ। ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਤਦਾਰ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਇਕਤਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਸ਼ਹੀਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜੀ ਮੁਕਾ ਛੜੀ ਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਟੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਛਪਦੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਨਰ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪੀਆਂ ਸਨ ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਟੋਪੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਯੈਸ ਠੀਕ। तो ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨੋਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਾਣੇ ਨੇ। ਯੈਸ ठीक है ना, तुसी भाएं उस तो जो मर्जी नारे लिखो या भाएं तुसी। मैंने अपने 10 साल मुझे हो गए वहाँ पे, मैंने कभी कोई बैनर लगा नहीं देखा किसी पॉलिटिक्स का, किसी ऑफिसर का, किसी जो है ना वो यार चाइनीज प्रेसिडेंट के तो लगे होते हैं यार। किधर लगे होते हैं यार? टीवी में आता है यार। नहीं वो इधर पाकिस्तान में लगे होते हैं। अच्छा उधर नहीं लगे होते? उधर नहीं लगे होते। ठीक है, मैं तकरीबन 4 साल बीजिंग में रहा हूँ, बिल्कुल वहाँ पे जहाँ पे इनके प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह और सब यहाँ उसके करीब तरीन इलाके में मैं रहा हूँ। मैंने कभी मुझे कानो कान खबर नहीं हुई कि यहाँ से कोई गुजरा है, यहाँ से कोई ऑफिसर या कोई बड़ा बंदा गुजर गया यहाँ से, पता ही नहीं चला हमें। फायदा की दुनिया ते आंदा ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫਾਲੋਅਰ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹੜੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਕਰਨੀ? ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਦਮ ਅਸਲ ਖਾਦਮ ਉਹ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ, पूरी दुनिया के भी ख़त्म है। यस ठीक है, सर्व तो वही कर रहे हैं लोगों को एक्चुअली, और जो उनके लीडर्स हैं वो भी सर्व ही कर रहे हैं, चाहे दुनिया को कर रहे हो चाहे लोगों को। आज पूरी दुनिया की इकॉनमीज़, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स जो है, मैं समझता हूँ कि शायद वो चाइना के आगे वो रुकू की हालत के अंदर ही है, और हम भी उनके सामने यूँ रुकू की हालत नहीं है कि सरकार थोड़े जे युआन या डॉलर सानू पा दी हो, साढ़े बैंकों च पा दी हो ताकि असीं सड़कां अपनियां बिल्ड कर लईए, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਵਾਦਰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਲਈਏ, ਪੰਗਾ ਪਾ ਲਈਏ।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, पता नहीं है। ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। चाइनीज़ का सबसे बड़ा एक और जो मैं आपको बताऊं कि आप ये देखें उनका पूरे का पूरा सिस्टम चाइनीज़ लैंग्वेज में है। उनका कोर्स क्लासेस ईच एंड एवरी, चाहे आप यूनिवर्सिटी में बैचलर कर लें, पीएचडी भी आपको चाइनीज़ लैंग्वेज में करनी है। चाइनीज़ आप चाइनीज़ में आपने की है? मेरी इंग्लिश में है। अच्छा चलो ठीक है, तो हमें चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाते हैं, ठीक है। बट मेरी चूँकि मैंने चूज़ इंग्लिश की थी तो मैंने इंग्लिश में की है। ठीक है, अदरवाइज़ चाइनीज़ के लिए बुक्स भी चाइनीज़ में हैं, चाहे वो स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में। उन्होंने अपनी हर चीज़, हर सिस्टम उन्होंने खुद डेवलप किया अपना, भले ही कॉपी किया वो, लेकिन अपने लोगों के लिए आसान बना दिया है। अब मसला यहाँ पे क्या है कि आपने अगर लेट सपोज, मैं अभी भी देखता हूँ कि यहाँ पे अगर ऐप्स डेवलप हो भी गई हैं तो मेजॉरिटी ऐप्स इंग्लिश में बनी हुई हैं, जो गवर्नमेंट ने भी बनाई हैं लोगों की आसानी के लिए, लेकिन वो लोग जो मतलब पढ़ ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, उनके किस काम की हैं। तो ये जो है ना वो फिर गैप क्रिएट हो रहा है हमारे यहाँ पे। उस गैप को उन लोगों ने ख़त्म किया है, और यही वजह है कि वहाँ पे जो है वो बड़ी तेज़ी से कोई भी चीज़ आ जाए, कोई भी पॉलिसी आ जाए, फ़ौरन अडेप्ट कर लेते हैं वो लोग, अडॉप्ट कर लेते हैं उसको। यहाँ पे टाइम लगता है। अच्छा अरसलान, ये जो पता चलता जी चाइनीज़ मिनिस्टर ने करप्शन की, उससे गोली मार दी गई, ये बात ठीक है या कहानियाँ? 100% दुरुस्त है। गोली मारते हैं, मैंने पहले भी बताया कि गोली मारने के बाद पैसे भी गोली के वो फैमिली से ही लेते हैं। अच्छा, तो उनकी अदालतें इंसाफ करती हैं? बिल्कुल करती हैं, 100% करती हैं। और वो जो उनकी अदालतें हैं उनके अंदर ब्रिटिश निज़ाम तो नहीं है? क्योंकि हमारे पास उनके भी हाकिम ब्रिटिश ही थे, हमारे भी हाकिम ब्रिटिश थे, उनके ऊपर वो जो पीनल कोड है उनका, वो ब्रिटिश चल रहा है या वो चाइनीज़ है? अच्छा, मेरा इनके जो जस्टिस का सिस्टम है उससे ज़्यादा वो तो नहीं, इंटरेक्शन तो नहीं हुआ, बट सम हाउ मेरे पास कुछ केसेस आए मेरे चाइनीज़ दोस्त के जो अदालतों के चक्कर लगा रहे थे, लेट से कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम थी। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी हमारा मसला सॉल्व हो गया, हम लोग गए हैं अदालत में, हमारा सॉल्व हो गया, कोई स्कैम हुआ है उनके साथ, कोई भी फ्रॉड हुआ है, तो अदालतों से उनको 100% उनको एतबार भी है, उनको ट्रस्ट है अपनी अदालतों पे, और वहाँ से उनको इंसाफ मिल जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ऑलराइट इस्लाम जी, चाइनीज़ जो अदालतें हैं वो इंसाफ करती हैं, पॉलिटिक्स जो है वहाँ पर जो है वो डिस्कस नहीं की जाती टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया के ऊपर। रिलीजन जो है वहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाता। चाइना का रिलीजन जो है शायद वो पैसा है, लेकिन मुझे तो यूँ लगता है कि शायद हमारा रिलीजन जो है वो पैसा है। हम लोग शायद इल्ला माशाल्लाह दोगले हो चुके हैं कि हम लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं, मज़हब की बात करते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करते हैं, और मजहबी टच जो है वो हर हमारी बात के अंदर होता है, लेकिन हमारी प्रैक्टिसेस के अंदर कहीं पर हकीकत के अंदर मज़हब नज़र नहीं आता। तो ये मेरे लिए कुछ मुश्किल सवालात हैं, सोचने की चीज़ें हैं कि जिस शख्स को मालूम है कि बस यही दुनिया सब कुछ है, इसके बाद ना कोई हूर है, ना कोई कहीं पर हूरा है, ना कोई जन्नत है, या शायद कोई ना कोई दोज़ख है, मतलब उस एक चाइनीज़ के लिए ये चीज़ें सारी की सारी एग्जिस्ट नहीं करती। और हमारी ज़िंदगी, हमारा ईमान कंप्लीट नहीं होता कि हम लोग आखिरत के ऊपर ईमान अगर नहीं लेके आते तो हम अहले ईमान नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद शहर के अंदर जो है इल्ला माशाल्लाह कोई खालिस दूध बेचने वाला नहीं मिलता, और पॉलिटिक्स जो है उसका बड़ा डंडोरा है। बहुत से पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन क्या कोई चाइनीज़ पॉलिटिशियंस ऐसा भी है जो अपनी तशहीर ना करे और काम करता रहे? तो इसी पैगाम के साथ कि हमें चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से हम लोगों ने थोड़ी सी वक्ती सी दिफाई कामयाबी हासिल की है। असल कामयाबी हमें मुआशी मैदान के अंदर लेनी है, और मैं ये समझता हूँ कि यही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक है, और यही सहाबा की सुन्नतों में से एक है कि हमें अपना माल जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बेचना है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग बेचेंगे। और आज हमें ये जो टूल्स हैं, ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग, ये हमें इतना एम्पावर्ड करता है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए ना अपना माल पूरी दुनिया के अंदर बेच सकें। आखिर के अंदर मैं इस वीडियो के अंदर ये पैगाम देना चाहूँगा कि अरसलान चाइना के अंदर जो है इनकी अपनी ट्रेडिंग कंपनी है। आपको चाइना से कुछ भी इंपोर्ट करना है
आपको चाइना से कुछ भी इंपोर्ट करना है सस्ते दामों में इंपोर्ट करना है, बल्कि अली बाबा से भी सस्ते दामों से इंपोर्ट करना है, तो आप अरसलान का से रब्ता कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप इसके ऊपर अरसलान को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जी, व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। तो अरसलान आपको बहुत सारी चीज़ें चाइना से जो है वो ख़रीद के भेज सकते हैं। यहाँ पर मैं बस एक सवाल अरसलान से पूछना चाहूँगा। अरसलान, जब एक शख्स जो है अली बाबा पे उसकी अप्रोच है और अली बाबा के ऊपर उसको माल मिल रहा है, तो आप अली बाबा से कैसे सस्ता माल जो है पाकिस्तान के इंपोर्टर्स को दे दोगे? देखें, अली बाबा पे जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, नॉर्मली मार्केट में लोग कहते हैं कि जी वहाँ पे बहुत सारे जो है वो एजेंट बैठे हुए हैं। हम भी एज ए एजेंट ही काम करते हैं। एजेंट या मैन्युफैक्चरर्स? मैन्युफैक्चरर भी हैं, बट समहाउ हम अब इस वक्त जो है वो अली बाबा पे ट्रेडर ज़्यादा बैठे हैं। ट्रेडर, ओके। अब वो जो ट्रेडर हैं उनकी प्राइसेस जो हैं वो इसलिए थोड़ी ज़्यादा होती हैं कि उन्होंने वो प्लेटफॉर्म की फ़ी पे करते हैं, अली बाबा की फीस पे कर रहे हैं, और ठीक वो है, अच्छी फिर अपना खासी मार्जिन amount पे भी, करते हैं, ठीक फिर है। अपना मार्जिन। तो चूँकि हम लोगों को वो जो है वो वहाँ पे फ़ी वो पे नहीं करनी होती, और सेकेंडली है कि हम लोग मल्टीपल फैक्ट्रीज से जो है वो रब्ता करके उनसे जो है वो कंपैरिजन आप असल करके मैन्युफैक्चरर्स के साथ आप कनेक्टेड हो ऑन ग्राउंड जो मैन्युफैक्चर। और फिर एक दो और बात मैं यहाँ पे ऐड करूँ कि मेजॉरिटी जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो जो एक्चुअल फैक्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, वो अली बाबा पे मौजूद ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मतलब तो उन फैक्ट्रीज़ के साथ जब आप कांटेक्ट करेंगे तब आपको प्राइसेस और बेहतर मिलेंगी। तो हमारी कोशिश यही होती है या प्रायोरिटी ये होती है कि मैं जब भी किसी फैक्ट्री से परचेज़ करने लगता हूँ तो मैं pहले ही पूछता हूँ आप अली बाबा पे अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल है तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी ऐसे के पास जाऊँ जो अवेलेबल नहीं है। अब ये यहाँ पे शायद आप लोगों के लिए जो लोग देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा रिस्की हो कि वो किसी और मैन्युफैक्चरर से परचेज़ करे, बट चूँकि हम फिज़िकली वहाँ पे अवेलेबल हैं, हम जा सकते हैं बड़े आराम से, तो हम लोगों के लिए ये एक एडवांटेज है कि हम आपको सस्ती प्राइसेस के ऊपर चीज़ ऑफ़र कर सकते हैं। और अरसलान, थैंक यू सो मच। तो जनाब, आपको अगर आप चाइना से ऑलरेडी कुछ इंपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट करना चाहते हो और अली बाबा से आपको प्रोडक्ट मिल रही है, तो आपको उससे भी सस्ती प्रोडक्ट जो है वो अरसलान लेके दे सकते हैं। तो आप अरसलान से रब्ता कीजिए। और मैं अरसलान को ये बोल रहा था कि ख़ास तौर के ऊपर अगर आप पाकिस्तान में स्मॉल फैक्ट्रीज लगाना चाहते हो, तो अरसलान को मैं ये कह रहा था कि भाई आप पाकिस्तान के अंदर कंज्यूमर आइटम्स जो हैं उसकी चाइना से पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने के बजाय या उसकी इंपोर्ट पाकिस्तान में जो है उसको प्रमोट करने की बजाय आप ऐसी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर भेजो जिससे पाकिस्तान में होम फैक्ट्रीज लगें। एग्जैक्टली, ठीक है। तो आपकी होम फैक्ट्री लगाना चाहते हो, मिसाल के तौर पर आपने गन्ने का जूस जो है निकालने के लिए छोटी मशीन मंगवानी है, आपने कोई गुड़ बनाने के लिए कोई मशीन मंगवानी है, आपने कोई छोटा ट्रैक्टर मंगवाना है, ठीक है। छोटी छोटी फैक्ट्रीज लग सकती हैं। फॉर एग्जांपल पेपर प्लेट्स होती हैं, भाई हर रेस्टोरेंट में यूज़ होती हैं। हाँ, पेपर प्लेट्स कप्स हैं। हाँ, पेपर एक कप्स छोटी सी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ये लेदर बनाने की, ये लेदर जो है ये मतलब ये चाइनीज़, अनफॉर्चुनेटली मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी अपनी कंपनी जो है वो लेदर की बहुत सारी चीज़ें बेचती है, पर भाईजान पास मजबूरी है, ये जो बटवा है मैं चाइनीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो इसकी जो कट्स हैं ये लेदर के, ये लेज़र कट्स हैं और ये बड़ा बरीक लेदर है। तो अगर इसकी नस्बत में पाकिस्तानी लेदर लेता हूँ तो इतनी तहों वाला लेदर जो है ना वो इतना मोटा हो जाता है। तो हम सॉरी, हूँ पाकिस्तानी लेकिन क्या करूँ, ये चाइनीज़ वॉलेट मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बजाय आप चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की आइटम्स को, मशीनरी को मंगवाएं, वो प्रोडक्ट बनाएं, अपने मुल्क में ही बेचें, दुनिया को भी एक्सपोर्ट करें, आपको भी फ़ायदा होगा, दुनिया को भी। तो हमें ऐसी सैकड़ों नहीं हज़ारों फैक्ट्रीज लगानी है, स्मॉल फैक्ट्रीज लगानी है। तो छोटी छोटी अगर आपको, आप देखिए, रिसर्च कीजिए, अली बाबा से देखिए कि वो कौन सी ऐसी छोटी सी मशीन है जिसको आप पाकिस्तान में लगा के छोटी सी फैक्ट्री लगा सकते हो। कि आप वो फैक्ट्री लगाओ जिससे आप लेदर वॉलेट्स बनाओ और उसको एटसी के ऊपर बेचो। वो कौन सी फैक्ट्री है जिसके अंदर आप सपोज़ ये बटन बनाना शुरू कर दो, बटन बनाने की फैक्ट्री, सॉक्स बनाने की फैक्ट्री, ये क्या उसका नाम है, साबुन बनाने की फैक्ट्री, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ से आप थोड़े पैसों से चाइना से एक घर, यहाँ पर मशीन मंगवाओ, रॉ मटेरियल लो और छोटी सी फैक्ट्री अपने घर में लगा लो। अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब और कामयाब करे। बहुत शुक्रिया जी आपका भी, थैंक यू।